Hello everyone and welcome to B for Health. Today we are joined by Dr. B.S. Garg, an expert in community medicine, to discuss about lifestyle habits, disease prevention and Gandhian principles of health. Why are we talking about Gandhian principles of health with Dr. B.S. Garg? His lifelong work in community health, simple living and prevention reflects Gandhiji's vision of health for all. In this session, we'll explore how these ideas are relevant in modern times and how small preventive steps can transform your health and well-being. Thank you for joining us, Dr. Garg. Please tell us more about your institutes. Thank you. Thank you for calling me here. I belong to Mahatma Gandhi Institute Medical Sciences, Sevagram. The institute was started in 1969 as a part of Gandhi League, and it's a unique example of public-private partnership in medical education, which is working very well for last 56 years. Initially, our budget was only 20 crore. This year, now budget is 70 crore. One more thing I would like to tell about the institute. Our hospital is known as Kasturi Hospital, and it's a unique in the sense that it's the only hospital of the country which was started by Mahatma Gandhi in 1942. It is a 15-bedded hospital. The same hospital is grown now to 974 beds. That's great, sir. So, sir, गांधी जी का फोकस सिंपल और क्लीन खाने में बहुत रहता था. उनके प्रिंसिपल्स इस चीज को बहुत एडवाइस करते थे. तो उनकी कुछ डाइटरी हैबिट्स व्हिच आर स्टिल रेलेवेंट इन टुडेस वर्ल्ड, उन पे कुछ आप बताना चाहेंगे? गांधी जी जब सेवाग्राम आए, ज्ञान तो सेवाग्राम में इसलिए बार-बार उसको बोल रहा हूँ, 1934 में, तो ये देखिए गांधी जी का लोकल बिलीफ, लोकल प्रैक्टिस का इतना जोर था. उन्होंने कहा कि मैं ऐसे घर में रहूंगा क्योंकि लोकल चीजों से बना हुआ, लोकल मटेरियल से बना हुआ, एंड दैट्स हाउ द हाउस वाज बिल्ट. लेकिन उन्होंने गांधी से वर्धा में जो फूड वेजिटेबल प्रोड्यूस होती थी, उनकी लोगों से इन्वेंट्री भी बनवाई, और उसके बाद में उन्होंने किसी को बोला न्यूट्रिशनिस्ट को कि इनको थोड़ा एनालाइज करके मुझे बताओ कि इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या है, सो दैट आई कैन एडवोकेट टू अदर्स. तो गांधी जी को शुरू से ही अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने की आदत थी. प्रोबेबली उन्होंने अपने परिवार से सीखा हो. और दूसरा था कि उनका एक नेचर था, या उनको एक था कि उनको लोकल चीजों को प्रमोट करना. ऑलवेज ही हिमसेल्फ कंज्यूम लोकल फूड्स. तो लोकल फूड के उसमें हरी सब्जियां, फल में भी ये नहीं कि सेब खाएं, तो गांधी को कहता है कि जो भी लोकल हो रहा है उसको खाइए. ये अगर इसको लोगों को बताएं तो सस्टेनेबल है. और दूसरा है कि एवरीबॉडी कैन अफोर्ड ऑल दिस. All these things. So many times you have the seasonal. One should know. Say for example, sometimes you have amrud, sometimes you have chiku, sometimes you have banana. In my area we have sitafal. That is a very good source of calcium. Yes. So everything is in the community, but community is not aware. Right. तो गांधी जी ने अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से लोगों को डेमोंस्ट्रेट किया कि लोकली फूड खाने चाहिए, और वी शुड कंज्यूम more vegetable, more fruits, and do the physical exercise, regular physical exercise, not only physical exercise, do the regular physical exercise. Throughout Gandhi remained a vegetarian. He never consumed non-veg food. So it's an example again. It's not necessary that in case you want to prevent anemia, you have to get non-veg food. You can buy veg food also. What sources are so? So all these things Gandhi practices again same thing. He did himself and then asked to others. So fasting and mindful eating, these practices we've seen these from centuries. People have been practicing these. How can we incorporate them safely in today's lifestyle, sir? Actually, Gandhi ji practice all these things. तो फास्टिंग है या जो हमको माइंडफुल ईटिंग है, ये तो जरूरी हो गया है आज के टाइम. क्या है कि हम लोग अनाप शनाप खाते हैं, हमको ये भी ध्यान करते हैं कि वास्तव में इसका हमको जरूरत है या नहीं. और दूसरा है जो पहले लोग सब फास्टिंग करते थे, गांधी जी ने भी इसको फॉलो किया. फास्टिंग का मतलब है कि हमारे जो बॉडी का सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए. तो और डिपेंड करता है फास्टिंग में. आप say you can have regular fasting, you can have say
इंटरप्टिंग या बीच बीच में आप फास्ट करें। कुछ लोग आपने देखा होगा कि फिक्स डे में एकादशी का कोई व्रत करते हैं, है ना, कुछ नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं। बेसिकली इन सब व्रत का जो हमारी पुरानी प्रैक्टिस है, इसका मीनिंग तो एक ही है, मैसेज एक ही है कि हम अपनी बॉडी को उस टाइम के लिए, हमारे जो बॉडी का सिस्टम है उसको भी कुछ आराम दें जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर हो पाए। और दूसरा माइंडफुल ईटिंग, तो आजकल क्या है, फास्ट फूड ईटिंग बहुत हो गया है। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कहीं और कहीं चले जाए या कार्बोनेटेड ड्रिंक इस तरह से कई बढ़ता चला जा रहा है, इसको हमको रोकना पड़ेगा। और जितने भी आपके जो फास्ट फूड है, चाहे बर्गर हो चाहे पिज्जा हो, दे आर फुल ऑफ कैलोरीज, दे आर फुल ऑफ फैट। तो इस सब प्रैक्टिसेस को हमको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और मेरे को लगता है सर, आजकल के हम लोग देखते हैं बच्चे भी या बड़े भी टीवी स्क्रीन के आगे खाना खाना, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना खाना खा रहे हो। यू डोंट हैव कंट्रोल, आपका ध्यान वहाँ है और बस खाते जाते। टीवी, आपने टीवी का अच्छा किया, नॉट टीवी, आजकल मोबाइल और भी बड़ी समस्या हो गई है। लोग मोबाइल पे बात करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो टीवी से भी ज्यादा बड़ी समस्या मोबाइल है। मैं तो आपको मोबाइल को आप इसको डॉक्यूमेंट करिए कि मोबाइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ 21st। और इसके इम्प्लीकेशन बहुत हैं, और हमको मोबाइल का तो ये भी नहीं मालूम अभी आज से जो रेडियो वेव निकल रही है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। मे बी टुमारो इट विल कम। तो अगेन वी कम टू द पॉइंट। तो बेसिकली जो फास्टिंग है, जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन है, दिस इज टू क्लीन द बॉडी। अभी हम लोग काफी बार जाते हैं कि हम जैसे एनुअल रिट्रीट पे जा रहे हैं, हम 5 दिन का फास्टिंग, जरूरत नहीं है एक साथ 5 दिन का फास्टिंग। अगर हम रेगुलर अपनी लाइफ में इसको नेचर बना लें कि once a week फास्ट रखेंगे, once a month फास्ट रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन से आवर नेचर ऑफ वर्क, डिपेंडिंग ऑन आवर फीजिबिलिटी। राइट। तो दीज आर द वेरी गुड प्रैक्टिसेस व्हिच वी एज ओल्ड प्रैक्टिस है, कोई नई चीज नहीं है। बाहर के लोग इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें, फास्टिंग भी और माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। आज के बच्चों को बताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए वो टिफिन में भी बच्चे ऐसा फूड लेकर जाते हैं जो कि बेसिकली इज नॉट रिकमेंडेड। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने तो अपने कैंपस में कुछ चीजों पर बैन लगाया है। हमारे जो कैंटीन है, हमने उस पर बैन लगाया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक आप नहीं रखेंगे। आप फास्ट, ये जो डीप फ्राइड फूड है, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली डीप फ्राइड फूड में नॉट ओनली वी आर टेकिंग फैट, वी आर टेकिंग ट्रांस फैट, which is a poison, which is a sort of a poison to the body। इन चीजों को तो हमको जितनी जल्दी रोकना है, अगर बीमारियों को रोक, अदरवाइज क्या है कि ये हम इन चीजों का कंजम्पशन ही नहीं कर रहे, हम साथ में सिर्फ वी आर हेल्पिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। सर, हमें तो याद है हमारे तो स्कूल में कैंटीन ही नहीं होती थी। मतलब पूरा स्कूल, मेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट कैथलिक कॉन्वेंट स्कूल था, तो हमारे स्कूल में तो कैंटीन ही नहीं थी कि कोई, मतलब एक आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ जब जाके। बट आजकल के उसमें कितना रेलेवेंट है वेजेस में। नहीं, जंक फूड तो कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है। आई अंडरस्टैंड, आई फील दैट इसे बेसिकली डेलिब्रेट प्रैक्टिस ऑफ मल्टीनेशनल, the practices which have been banned outside, they are practicing, they are promoting it in India. One such example is of carbonated drink. Now see, you go to a remote village, there also you will find all these carbonated drinks. So basically under marketing policy, they have ensured that even poor person are consuming them. Somehow I think government must make policy to control all these carbonated drinks. Of course they may lose some tax, but it will be in long term beneficial for the community. अब तो किया है सर, 40% GST पे लेके आए हैं, देखते हैं उससे कितना फर्क पड़ता है। आई थिंक वी नीड सच पॉलिसीज सर। 40% या और भी ज्यादा लगा दें तो बैन भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। ये मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को दे शुड कम आउट विद, फॉर एग्जांपल गुजरात में और बिहार में बैन किया हुआ है अल्कोहल, ऐसे ही इनको फास्ट फूड को, कार्बोनेटेड ड्रिंक को भी कुछ पायलट बेसिस पे बैन करके आपको आई थिंक मॉडरेट करना चाहिए। इफेक्ट जरूर मिलेगा। इट्स द नीड ऑफ द टाइम। अगर आज नहीं करेंगे तो टुमारो वी विल बी कंपेल्ड टू डू ऑल दिस। So sir, finally, if you had to give one Gandhian health tip to especially today's generation, what would that be? ये
बहुत सिंपल हमारी से है, सादा जीवन उच्च विचार। तो अगर उसको हम फॉलो करें तो मुझे लगता है हमारी काफी चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। और गांधी जी ने इसी को प्रैक्टिस किया। गांधी जी को आप स्केच भी बनाना चाहें तो बड़ा जल्दी बना सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी थी, तो हमारी लाइफ में सिंप्लिसिटी हो। गांधी जी से हम यही लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू लिव इन सिंपल वे विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो आज हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हमारी जो जरूरतें बढ़ गई हैं, उसको भी हम थोड़ा सा कम करें। और साथ साथ में हमारी कुछ चीजें अगर उनको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वी विल रिक्वायर डिसिप्लिन, लाइक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, लाइक we must have a mindful eating. We must know how much calorie we are consuming, how much it is required, whether really we require that much fat we are consuming. Yes. Occasionally you can take it, but otherwise you must maintain a sort of a passbook where you know how much you have consumed and where you know how much you have spent it in the form of your daily activity or physical activity. In case we keep these things in mind, we can prevent it. I tell you, we lost one of our great leaders, Gopal Gokhale, due to diabetes. He died at the age of 48 years, very young age. And before his death, Gandhi wrote him a letter. And he wrote the text here, I am advising you, consider it as a quack advice. And he advised all these simple things. You can prolong your life, provided you decrease the calorie intake, decrease the fat. Giving the advice, you have less amount of legume also, less amount of carbohydrate also, and plus less condiment, less salt, less sugar. And what he advocated at that time, olive oil also. वो सब उस जमाने में and Pune bath basically the technique of sun bath. So that also. So basically Gandhi he knew all these things, he practiced all these things. Probably that's how he did not suffer with diabetes. तो आज के ज़माने में भी हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, तो जो आज हमारा जो बहुत विकराल समस्या जो हमको देख रहे हैं यार, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर की, मोटापे की जो होने जा रही है, उन सबको हम रोक सकते हैं। और ये संभव है, गांधी जी ने कर दिखाया, तो हम लोग भी कर सकते हैं। So thank you, sir. Thank you for joining us and sharing these valuable insights of Gandhian principles of health. I hope our listeners find some inspiration and they're able to practice these, key takeaways in their daily lives in preventing and managing overall health and well-being. Thank you for joining us today, sir. Thank you. I had a nice interaction. लेकिन इसका फायदा तभी होगा कि जब लोग तो सिंपल जो लाइफ है, जो सिंपल वे ऑफ लाइफ के हैं, जो फास्टिंग है, जो फिजिकल एक्टिविटी का जो मैसेज है, इन सबको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो जो आज हमको समस्या आने वाली है, बहुत देख रहे हैं नई एपिडेमिक और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की जो ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है, बिल्कुल, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मुझे लगता है पोस्टपोन कर सकते हैं, स्टॉप कर। थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग।